Hello, my dear students. Welcome to this session in chapter 9, which is about biomolecules. Up till now, we have discussed about the formation of carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids, and even which type of bonds they are present in them. Now, even earlier session, we have completed the metabolic basis of living organism. We have learned about certain metabolism, that is anabolic and catabolic reactions with few examples. Let us start some detail about the same topic further. If we talk about living state, at this level we must understand that the tens and thousands of chemical compounds in living organisms are there, which are known as metabolites. And we are dealing with all the metabolites in this chapter only. Now, certain more examples they are quoted here. For example, the blood concentration of glucose in a normal healthy individual, it is 4.5 to 5 millimeter, while that of hormones would be in nanograms per milliliter. The most important fact of biological system is that the living organism exists in a steady state, and it is characterized by concentration of each of these biomolecules, क्योंकि इनके ही सारे conversion से ही ये steady state maintain होती है. These biomolecules are in a metabolic flux. Any chemical or physical process moves spontaneously to equilibrium. ये generally होता है. But the steady state is a non-equilibrium state. बिल्कुल इसका opposite है. अगर लिविंग कंडीशन है मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट हमेशा एक नॉन और नॉट, वी कैन से दैट इट इज़ स्टेडी स्टेट, एकदम कांस्टेंट है. तो इक्विलिब्रियम जब भी आएगा तब कांस्टेंट जैसी कंडीशन हो जाएगी. बट लिविंग स्टेट्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो द स्टेडी स्टेट इज़ अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. एंड एज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर्क कंटिन्यूसली, हमको मालूम है अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो कुछ ना कुछ वर्क चलता रहेगा, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनी एक्टिविटी लाइक दिस. सो दैट मीन्स दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम वो पा ही नहीं सकते, क्योंकि इक्विलिब्रियम पाएंगे मतलब वर्क करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी. दैट मीन्स इट इज़ डेड. तो तब हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते. हेंस एक स्टेटमेंट हम कोट कर सकते हैं यहाँ पे, that the living state is a non-equilibrium steady state to be able to perform work. बहुत ही important keywords हैं, living state, having non-equilibrium steady state, and they perform work. ऐसे भी हम समझ सकते हैं. So this is achieved by actually energy input, and metabolism provides a mechanism for the production of energy. Therefore, living state and metabolism they are synonymous to each other. एक जैसे words हैं समझने के लिए. Without metabolism there cannot be living state. तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं. ओके, तो ये एक जनरल कंसेप्ट है. चलिए अब हम बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंजाइम्स के बारे में. वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ एंजाइम्स, and they are also known as biocatalyst because they are behaving as catalyst. They are making the reaction faster. They are not involved, they only guide the reaction to become faster, and they are not used up. ये catalyst की विशेषता होती है. And as these catalysts they are found in the living world, इसलिए इनको हम बोलते हैं biocatalyst. And basically almost all the enzymes they are protein in nature. वो प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल से ही बने हुए होते हैं. बट सम ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स दे ऑल्सो बिहेव एज एंजाइम्स, इसलिए उनको हम नाम देंगे राइबोजाइम्स, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे RNA इज एक्टिंग एज अ एंजाइम, इसीलिए राइबोजाइम हमने नाम दिया है. देन इफ वी सी एन एंजाइम जस्ट लाइक अ प्रोटीन, इट हैज़ अ सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स ऑल्सो अलॉन्ग विथ प्राइमरी स्ट्रक्चर. अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो अमीनो एसिड्स की पूरी चेन होती है, सिंगल चेन होती है और पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं.
अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर और शीट लाइक स्ट्रक्चर इज़ फाउंड। देन टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो एक ही अमीनो एसिड का चेन है, बट वो इस तरह से अरेंज होता है, वाइंडिंग करता है, एक दूसरे में क्रिस क्रॉस वाइंडिंग करता है कि वो बिल्कुल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो यहाँ पे जब वो क्रिस क्रॉस होके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, देन दे आर हैविंग मैनी क्रिवाइसेस और पॉकेट्स इन देम। So one such pocket is actually known as active site of an enzyme. What is active site? It is a crevice or a pocket into which the substrate fits. अब आप पूछोगे substrate क्या होता है? तो substrate एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एंजाइम के साथ यहाँ पे एक्टिव साइट में वो जुड़ जाता है, ठीक है। Thus enzymes through their active site catalyze the reaction at very high rate. And enzyme catalyst differ from inorganic catalyst in many ways. अब हम कंपेयर कर रहे हैं वो कैटलिस्ट जो नॉन लिविंग वर्ल्ड में है और एंजाइम्स जो लिविंग वर्ल्ड में है। एक्चुअली inorganic catalysts they work efficiently at high temperatures and high pressures, but enzymes they get damaged at high temperatures, let's say above 40 degree centigrades. तो ये एक one of the point of difference है। Even enzymes which are isolated from organisms who normally live under extremely high temperatures, for example hot vents or hot springs or sulfur springs, they are stable and retain their catalytic power even at such a high temperature, जैसे कि 80 डिग्री और 90 डिग्री तक। So thermal stability is thus an important quality of such type of molecules. तो ये भी थोड़े बहुत फैक्ट्स हमने एंजाइम्स के बारे में देखे, एक जनरल आइडिया लिया हमने एंजाइम्स के बारे में। सो अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड सर्टन फैक्ट्स अबाउट एंजाइम्स। अब हम देखते हैं कि एंजाइम्स कैसे रिएक्शंस में इन्वॉल्व होके उन रिएक्शन को फास्टर बनाते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। एक्चुअली एंजाइम्स उनमें पार्टिसिपेट तो करते हैं बट उनका कोई यूज़ नहीं होता उसमें, वो एज सच वापस से रिलीज़ हो जाते हैं और फिर से वो दूसरा ऐसा रिएक्शन फास्टर बना सकते हैं। सो दे आर एक्चुअली नॉट यूज्ड अप, ठीक है, और वो हमेशा सबस्ट्रेट के साथ ज्वाइन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसके पहले हम थोड़े से केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो 2 टाइप ऑफ चेंजेस। सबसे पहले a physical change which is simply referred to a change in shape without breaking any bond, ठीक है। So this is a physical process. Another physical process is a change in a state of matter when ice melts into water or when water become a vapor. इसको भी हम physical process समझते हैं। There are physical processes. So however when bonds are broken and a new bonds are formed during transformation, this will be called a chemical reaction. जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पे BaOH whole twice when it reacts with sulfuric acid it will be converted into barium sulfate and water molecule is released. इसी तरह से अगर हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं तो सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। स्टार्च यहाँ पे पॉलीसेकेराइड है और वो कन्वर्ट हो रहा है मोनोसेकेराइड में। सो रेट ऑफ अ फिजिकल और अ केमिकल प्रोसेस रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस। यहाँ पे मैंने इक्वेशन आपको टिक मार्क करके रखी है, तो ये आपको नोट डाउन करनी है। हियर प्रोडक्ट अपॉन time taken, so amount of product upon time taken. So rate can also be called velocity if the direction is specified. Rate of physical and chemical processes are influenced by temperature among other factors also, and generally all these things we have to remember. आगे भी हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। Here we will see that catalyzed reactions proceed at rates vastly higher than that of uncatalyzed ones. इसी का importance है ये। When enzymes they catalyze reactions, they are observed and the rate would be vastly higher than the normal uncatalyzed reaction. जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा इक्वेशन,
यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, कैसे हम कंपेयर करेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो with about 200 molecules of carbonic acid being formed in an hour। एक घंटे में इतने मॉलिक्यूल्स 200 मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं। बट when we use this enzyme carbonic anhydrase, the reaction speeds dramatically with about 60 lakhs molecule 6 lakh molecule being formed every second। अब आप सोचो, कंपेयर करो, the enzyme has accelerated the reaction rate by about 10 million times। So this is the power of enzyme, and there are thousands such type of enzymes, each catalyzing a unique chemical reaction। तो ये तो एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया। ऐसे बहुत सारे अनगिनत रिएक्शंस हैं जो बॉडी में एंजाइम्स की मदद से फास्टली चलते रहते हैं। दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एंजाइम। अभी हमने देखा कि किस तरह से कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स की मदद से 10 मिलियन टाइम्स द रिएक्शन बिकम फास्टर। वन सच another example is of conversion of glucose molecule into pyruvic acid, and here a multi-step chemical reaction when each of the step is catalyzed by the same enzyme or complex or different type of enzymes। और ये डिटेल में हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम देखें किस तरह से ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ओके, सो हियर वी विल सी दैट हाउ द मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम्स विच आर कैटेलाइजिंग दिस रिएक्शन। Even in our skeletal muscles under anaerobic condition, जब हम vigorous exercise करते हैं तब anaerobic respiration होता है। Here lactic acid is formed, but under normal aerobic condition pyruvic acid is formed। तो ये nature है, reaction as per the requirement, इस तरह से changes switch over होते रहता है। Similarly in yeast, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। वही ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, बट अलग अलग रिएक्शंस की मदद से, अलग अलग एंजाइम्स की मदद से वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है। ठीक है, हेंस इन डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे आर पॉसिबल। सो दिस इज द नेचर ऑफ एंजाइम। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विच वी हैव डिस्कस्ड। Now let's see how do enzymes bring about such high rate of chemical conversion. That means now we will talk about activation energy. What is the importance of activation energy? Just to understand this, which we have already understood the idea of active site. So the chemical or metabolic conversion which refers to a reaction here, and chemical which is converted into product is known as substrate, and we all know that substrate first will bind with active site of enzyme. Hence the enzyme, which is a protein, it has 3-dimensional structure including active site. So here we can show this as a symbol form, or symbolically the S is converted into P। यहाँ पे मैंने टिक मार्क करके आपको समझाया हुआ है। And it is now understood that substrate has a bind टू एंजाइम एट एक्टिव साइट। ये इसकी इम्पॉर्टेंस है। और ये एक्टिव साइट हमको मालूम है टर्शरी प्रोटीन्स में जनरली ये पॉकेट्स या क्रिवाइसेस होती है, उनको हमने ऐसा नाम दिया है। सो द सबस्ट्रेट हैज़ टू डिफ्यूज टूवर्ड्स एक्टिव साइट एंड बाइंड हियर। सो जैसे ही बाइंडिंग होगा, द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इट इज़ ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी है ये। एंड ES कॉम्प्लेक्स, ऐसा भी हम नाम देते हैं। E हियर स्टैंड्स फॉर एंजाइम एंड S स्टैंड्स फॉर सबस्ट्रेट। और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा ये टेम्परेरी फॉर्मेशन होगा। सो दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांजिएंट फिनोमिनन, एंड ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू एंजाइम साइट, अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ अ सबस्ट्रेट विच इज नाउ नोन एज द प्रोडक्ट, इट विल बी फॉर्मिंग। And very soon after the expected bond breaking,
making is completed. So the product is released from the active site. So in other words, we can say that the structure of substrate gets converted into structure of product. जब भी सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, देन उसके बाद प्रोडक्ट रिलीज़ होगा, साथ साथ में एंजाइम एज सच रिलीज़ हो जाएगा. So there could be many more altered structural stages in between the stable substrate and product. That is not in detail discussed over here, and the simple concept, the importance of activation energy, कि कैसे ये conversion होता है, किस तरह की एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर होती है, वो भी हम एक चार्ट की मदद से समझते हैं. सो दिस चार्ट विल शो यू द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. यहाँ पे आप देखिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हैं. देन एक साइड में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, और दूसरे साइड में पोटेंशियल एनर्जी शो की है. अगर हम सबस्ट्रेट को देखें, सबस्ट्रेट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है और ये बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. दिस पर्टिकुलर ग्राफ इट इज़ शोइंग एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम. ठीक है, तो आप सोचो ट्रांजिशन स्टेट को कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, बट अगर इसी रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व होता है तो आप ये देखिए सिर्फ इतना ही एक्टिवेशन एनर्जी विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम इज़ रिक्वायर्ड. सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. ये एक बूस्टर की तरह काम करता है. अगर आपको थोड़ा सा भी रिएक्शन को फास्ट करना है तो आप उसमें एंजाइम इन्वॉल्व करवा दीजिए. सो इट इज़ एक्टिंग एज अ बूस्टर. इट बूस्ट अप द रिएक्शन. सो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स faster with the involvement of enzyme. This can be understood with the help of this chart. So let us understand with the help of the description which is given here regarding this chart. Here the y-axis represents the potential energy content and the x-axis represents the progression of structural transformation or state through which the transition state is achieved. मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो हम एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं, और कितनी एनर्जी चाहिए वो हम वाई एक्सिस से कैलकुलेट कर सकते हैं. द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, इफ द पी इज़ एट लोअर लेवल देन सबस्ट्रेट, द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दैट मीन्स हीट इज लिबरेटेड हियर, एंड इफ इट टॉक बायोलॉजिकली, one need not supply energy in order to form the product, but however whether it is an exothermic or spontaneous reaction or endothermic or energy requiring reaction, the substrate has to go through much higher energy state जिसको हम बोलेंगे transition state, and the difference in average energy content of substrate from that of this transition state is called activation energy. So enzymes eventually bring down this energy barrier, making the transition of substrate to product more easier. यही enzymes का importance है, और इसीलिए in living state for every reaction enzymes are involved and they make the reaction faster by bringing down this activation energy. ठीक है, किस तरह से पूरा डिफरेंस आप देख सकते हो. विदाउट एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी चाहिए नॉर्मली अगर रिएक्शन हो रहा है तो, और अगर एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है तो किस तरह से उसको हम कम कर सकते हैं. एक्टिवेशन एनर्जी बिकम्स लेस. ओके, सो इट रिड्यूसेस विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड मेनी थिंग्स अबाउट एंजाइम्स. होप यू लाइक्ड इट, एंड टुडे वी आर एंडिंग आवर सेशन हियर ओनली. Meet you with the next session and we will discuss more about enzymes further. So till then, take care. Bye bye students.